Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, NIT Polytechnic, Nagpur, welcomes you in this online session of Emerging Trends in Computer and Information Technology. In the previous video, we have learned about logical design of IoT. Today, we will learn about IoT enabling technologies. Now, learning outcomes. After watching this video, we will be able to understand IoT enabling technologies, understand benefits of cloud computing services, and understand big data analytics. Now, course outcomes. This unit satisfies course outcome 2, CO2, interpret IoT concepts, and program outcomes 1 and 7, basic and discipline specific knowledge and lifelong learning. Prerequisite for this subject is knowledge of computer engineering and technology. Now let us start to the topic IoT enabling technologies. IoT enabling technologies means जो टेक्नोलॉजीज में IoT यूज होती है, ओके, ऐसी टेक्नोलॉजी जो IoT सपोर्ट करती है, IoT इम्प्लीमेंट करने के लिए एसेंशियल है. सो दिस टेक्नोलॉजीज आर कॉल्ड एज IoT enabling technology. IoT is enabled by several technologies. Once out of this is wireless sensor network, cloud computing, big data analytics, embedded services, and security protocol. These are the several IoT enabling technologies. Architectures: communication protocols, web services, mobile internet, and semantic search engines. These are also included in IoT enabling technologies. IoT enabling technologies में कौन सी टेक्नोलॉजीज IoT को सपोर्ट करती है या IoT enable करती है? IoT is enabled with these technologies. वायरलेस सेंसर नेटवर्क, IoT में वायरलेस सेंसर नेटवर्क यूज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स यूज होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं और एम्बेडेड सिस्टम्स यूज होते हैं. सो दीज टेक्नोलॉजीज आर कॉल्ड एज IoT enabling टेक्नोलॉजी. कौन सी टेक्नोलॉजी को IoT enabling टेक्नोलॉजी बोलेंगे? वायरलेस सेंसर नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, communication protocols and embedded services. Now, wireless sensor network क्या है? वायरलेस, वर्ड वायरलेस मीन्स जहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं होता है, सैटेलाइट थ्रू कम्युनिकेशन होता है जिसमें वायर्स का यूज नहीं होता है. सेंसर नेटवर्क, सेंसर का मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करता है, मतलब सेंसर के थ्रू, सेंसर ये डिवाइस यूज करके हम डेटा एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं. और ऐसा नेटवर्क कि जो डेटा एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कलेक्ट करके वायरलेसली विदाउट वायर्ड कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, वो डेटा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे या सर्वर पे स्टोर रहता है और वहां से वो फिर कम्युनिकेट किया जाता है IoT डिवाइसेस को. तो ये नेटवर्क को बोलते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क. वायरलेस सेंसर नेटवर्क मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है WSN, comprises of distributed devices with sensors which are used to monitor the environmental and physical conditions. मतलब environmental and physical conditions को monitor करने के लिए, data environment के through accept करने के लिए जो distributed devices है, मतलब अलग अलग जगह पे जो devices रखे हुए हैं, उसे हम बोलते हैं wireless sensor network. Network का मतलब क्या है? When devices are to be connected or devices are at distant location पे devices है, distributed devices मतलब अलग अलग जगह पे जो devices है उनको हम वायरलेसली कनेक्ट कर ले हैं. और ये जो devices है वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से, एनवायरमेंटल और फिजिकल कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं और उसके लिए सेंसर्स के थ्रू डेटा एक्सेप्ट किया जाता है. देखो यहाँ वायरलेस सेंसर नेटवर्क का एक छोटा सा डिजाइन दिया है. दिस इज द सेंसिंग रीजन. जैसे बोलते हैं कि ये सेंसर नोड्स है, अलग अलग जगह पे ये सेंसर नोड्स रखे हुए हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ये बेस स्टेशन के थ्रू
मतलब इंटरनेट के थ्रू बेस स्टेशन पे आते जब वो डेटा कलेक्ट होता है और इंटरनेट के थ्रू फिर वो यूजर को प्रोवाइड किया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज वायरलेस सेंसर नेटवर्क. A wireless sensor network consists of number of end nodes and routers and a coordinator. उसमें router होता है, coordinator होता है. End node have several sensors attached them. End node में बहुत सारे sensors होते हैं. End nodes can also act as a router. End node को हम router भी बोल सकते हैं. Router are responsible for routing the data packets from end nodes to the coordinator node. मतलब router का काम क्या है कि एंड नोड से कोऑर्डिनेटर नोड को डेटा पैकेट्स को रूट करना. द कोऑर्डिनेटर कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम ऑल द नोड्स. हर नोड की तरफ से आया हुआ जो डेटा है वो कोऑर्डिनेटर नोड कलेक्ट करता है. कोऑर्डिनेटर ऑल्सो एक्ट एज अ गेटवे दैट कनेक्ट्स द WSN मतलब वायरलेस सेंसर नेटवर्क टू द इंटरनेट. कोऑर्डिनेटर नोड ये गेटवे का काम करता है जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है. एग्जाम्पल्स ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क यूज्ड इन IoT सिस्टम्स आर. कौन से एग्जाम्पल है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के? वेरी फैमिलियर एग्जाम्पल इज वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, देन इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग सिस्टम, देन सर्विलेंस सिस्टम. सर्विलेंस सिस्टम भी WSN का एक एग्जाम्पल है. स्मार्ट ग्रिड्स, दीज आर ऑल्सो WSN का एग्जाम्पल है. और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग system. So these are the examples of WSN used in IoT system. Zigbee. Zigbee is also a wireless. Zigbee is also wireless sensor network. Zigbee is one of the most popular wireless technology used by WSNs. Zigbee specification are based on IEEE standard 802.15.4. Zigbee के लिए ये standard use किया जाता है 802.15.4. Zigbee operates at 2.4 GHz frequency. Zigbee के लिए 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी लगती है और डेटा रेट्स अप टू 250 kbs. रेंज फ्रॉम 10 to 100 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द पावर आउटपुट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन. वो एनवायरमेंटल कंडीशन और पावर आउटपुट के ऊपर उनका रेंज डिपेंड करता है कि 10 to 100 मीटर्स के बीच में. सो दिस इज द Zigbee. It is a wireless sensor network technology. Is wireless technology है Zigbee. We have to remember this. Next is cloud computing. It is also a wireless sensor network. Cloud computing is a transformative computing paradigm that involves delivering applications and services over the internet. On-demand availability of computer resources, especially data storage and computing power without direct active management by the user. क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि हमें कंप्यूटर रिसोर्सेस ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अवेलेबल किए जाते हैं. डेटा स्टोर करने के लिए, कंप्यूटिंग पावर यूज करने के लिए हमें डायरेक्टली हम उसको विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट मतलब हम डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट ना करते हुए हमें इनडायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है. कंप्यूटिंग पावर हमें यूज करने के मिलते हैं, रिसोर्सेस हमें यूज करने को मिलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज एक प्लेटफॉर्म दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू एप्लीकेशंस यूज करने का और सर्विसेज यूज करने का एक प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग. देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशंस ये बेस दिख रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, और जिसके थ्रू मोबाइल्स और हमारी सिस्टम और लैपटॉप के थ्रू हम इसे कनेक्ट होते हैं. इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्शन किया जाता है. तो स्टोरेज, जैसे हमारा डेटा मोबाइल में बहुत हो गया या हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, जैसे जीमेल, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का भी एग्जांपल है. तो जैसे हमें हमारा डेटा अगर जीमेल में हमें स्टोर करना है, आजकल बैंकिंग ऑल्सो यूज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्निक्स. ओके, सो दीज आर द टेक्निक्स यूज्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन सी है? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग: AaaS, PaaS and SaaS. AaaS means infrastructure as a service, PaaS means platform as a service, and SaaS means software as a service. Infrastructure as a service का एग्जाम्पल है Amazon, WebEx. प्लेटफॉर्म एज a सर्विस का एग्जाम्पल है Force.com. SaaS as a software as a service का एग्जाम्पल है हमारा Google, Salesforce. Okay, so these are the various platforms which are used for
क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ऑफर करने के लिए ये 3 टाइप की सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच इज ऑफर्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, सास, पास एंड आस। ओके, नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये ऐसी सर्विसेज है कि हमें स्टोरेज के लिए वो प्रोवाइड की जाती है, नेटवर्किंग के लिए, वर्चुअलाइजेशन के लिए हम ये यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हमें पे टू यूज बेसिस पे हमें यूज करना पड़ता है। मतलब ये जो रिसोर्सेस हम यूज करते हैं, वर्चुअल रिसोर्सेस हो चाहे कंप्यूटर का नेटवर्क हमें यूज करना है, तो उसके लिए हमें पे पर यूज पैराडिगम ये टेक्निक यूज होता है। हमें पे पर यूज लॉजिक यूज करना पड़ता है और हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। सो दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें हम जो रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसको यूज करते हैं। क्लाउड की तरफ से ये सर्विस ऑफर होती है, तो क्लाउड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेस है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट सर्विसेज है, जो कि वॉट एवर इट में भी हमें चाहिए, हमें स्टोरेज कैपेसिटी यूज करना है, हमें नेटवर्किंग यूज करना है, हमें वर्चुअलाइजेशन यूज करना है, तो उसके लिए हमें पे करके वो मशीन्स को, वो स्टोरेज रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है। सो दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। उसके एग्जाम्पल्स है हमारे, देयर आर द एग्जाम्पल्स दैट इज Amazon EC2, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, GoGrid, Rackspace, DigitalOcean, among others. So these are the examples of infrastructure as a service. Next, platform as a service. Platform as a service में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल होते हैं हमें नेटवर्क के थ्रू। मतलब ये API से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसमें यूज होता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस यहाँ यूज होते हैं। यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स हमें अवेलेबल किए जाते हैं नेटवर्क के थ्रू। सो दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देन इसके एग्जाम्पल्स है ब्लूमिक्स, क्लाउडबीज, सेल्सफोर्स, गूगल ऐप इंजिन, AWS मतलब Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ओपनशिफ्ट, ओरेकल क्लाउड SAP एंड ओपनशिफ्ट। सो दीज आर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल किए जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो उसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओवरऑल कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि हमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल करके दिए जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ से, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या सर्वर्स हो, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर हो, वॉट एवर इट में बी, तो उसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसके कॉमन एग्जाम्पल्स है सास के, जैसे एडोब क्रिएटिव क्लाउड, CRM, Powernet marketing automation, SAP business by design, Marketo, Oracle, Salesforce. These are the common example of software as a service. Benefits of cloud computing services. Cloud computing services से benefits क्या है? Faster implementation and time to value. Then anywhere access to applications and contents. Then rapid scalability to meet demand. Then higher utilization of infrastructure investments. Then lower infrastructure energy and facility cost, and create greater IT staff productivity and across organization. Enhanced security and protection of information assets. तो हमें यहाँ faster implementation मिलता है, anywhere access मिलता है, scalability मिलती है, हायर यूटिलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ है उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, और स्टाफ की प्रोडक्टिविटी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ से मिलती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, नाउ बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स का हमने इसके पहले ही देखा है। तो बिग डेटा को मैनेज करने का काम कौन करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू होता है। So big data analytics is a process of collecting, organizing, analyzing large set of data to discover patterns and other useful information. So big data analytics जो इन्वॉल्व होता है वो सेवरल स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा क्लीनिंग, डेटा मगिंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन। बिग डेटा एनालिसिस यानी जो बहुत सारा डेटा अलग अलग माध्यम से जो कलेक्ट होता है उसको कैसे यूज करना, उसका एनालिटिक करना, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग की एक वन ऑफ द एप्लीकेशन। नाउ लेट अस समराइज द टॉपिक। टुडे's video we covered IoT enabling technologies, cloud computing and cloud computing services.
And benefits of cloud computing services, big data analytics.